the Ministry of HRD has given this. Now the Ministry of HRD is termed as Ministry of hello, am I audible? Please type yes or no in the chat box, because I am okay, perfectly fine. There is some technical glitch I am facing. Okay, so I hope you all are able to see my screen. I hope you all are able to see my screen. Type yes or no in the chat box. Perfectly fine. So we will begin with this. Just a second, let me see the settings here. By the time students are entering, I'll not start with the presentation, but by the time I'll discuss with this. So national education policy, I am, allowing participants to unmute. I just want to understand, what do you mean by national education policy, or what do you understand by national education policy? ये होता क्या है? ये education policy क्या होती है? ये क्यों आई, और हम आज क्यों इस पर डिस्कस करने वाले हैं? I want to understand this thing. So please, unmute yourself and please answer this question of mine. And मैं चाहता हूं कि हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रखें, बोरिंग सा ना रखें, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, I assure you, you will enjoy this session like anything. So I would request you all to, answer the questions which I'll be, putting in forward during the session. So national education policy hota kya hai? Let we first understand this thing. Kya hota hai ye national education policy? Hello, can anyone answer? Hello, am I audible? Am I audible? Can anyone answer me this question? Yes, sir. Okay, so please answer the question. National education policy क्या होगा यार? ये है क्या? किस चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया हमारे पास क्यों आ गई? हम तो यार फार्मेसी ग्रेजुएट्स होने वाले हैं, हम लोग फार्मेसी पढ़ने वाले हैं. सो ये चिड़िया हमारे पास आई क्यों? इस चिड़िया से हमको लेना देना क्या है? Can I have the answers? आप लोग yes sir तो बोल रहे हो, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है. Okay, how many of you know a university known as Nalanda? Ancient Indian university known as Nalanda. Yes, sir. ये तो Yes, sir. yes sir, perfectly fine, perfectly fine. Some of you know the university Nalanda. Please, until and unless you are not answering, do not unmute yourself and do not switch on your video modes. It will hamper our recording. This session is being recorded and we will upload this session on the website of IIC, as well as we will be uploading the recording of the session on our YouTube channel. So please do not put your face mode on. So नालंदा आप सब लोगों ने नाम सुना है. क्या है ये नालंदा? कहाँ की यूनिवर्सिटी है ये? Answer. Let us make this session as interactive as we can. नालंदा कहाँ की यूनिवर्सिटी है? Oh, Bihar. Divyansh Tiwari. Okay, perfectly fine. Thank you. I am glad to have your answer. Anyone else apart from Divyansh Tiwari? Anyone else apart from Divyansh Tiwari who can answer me this question? Nalanda University kahan ki hai? Okay, who is the Prime Minister of India? Who is the Prime Minister of India? अरे ये तो आंसर कर दो. Who is the Modi ji? Narendra Modi, sir. Narendra Modi. Perfectly fine. We all know this, huh? Who is the Education Minister of India? क्योंकि आज बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे. एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमको पता होना जरूरी नहीं है शायद. एम आई राइट? पोखरियाल सर. ओके, क्या नाम है उनका? पोखरियाल इज राइट वर्ड. क्या नाम है उनका? मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने वीडियो. रमेश पोखरियाल. रमेश पोखरियाल. परफेक्टली फाइन. ग्रेट, ग्लैड टू हैव आंसर फ्रॉम दिस. चलिए, नालंदा मैंने पूछ लिया था. एक और यूनिवर्सिटी का मैं नाम लेता हूं और आप बताइए मुझे वो कहाँ की यूनिवर्सिटी है. तक्षशिला. तक्षशिला यूनिवर्सिटी.
मैं 2 से 3 मिनट और क्वेश्चन आंसर राउंड रेडी रखूंगा, फिर हम प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, क्योंकि बाय द टाइम आई बिलीव सब लोग ऐड हो जाएंगे, फिर मैं किसी को ऐड नहीं करूंगा, सबको वेटिंग रूम में डाल दूंगा जो बाकी बचेगा। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ओह, पाकिस्तान। सर पंजाब। पंजाब। ओके, और कोई आंसर, और कोई आंसर? यूनिवर्सिटी कहाँ की है? सॉरी, हेलो। रावलपिंडी पंजाब। रावलपिंडी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो मोड ऑन ना करें, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और हम लोग रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे डालेंगे, तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप लोगों को बोला ना जाए, प्लीज डू नॉट स्विच ऑन योर वीडियो मोड्स, और एल्स मेरे को फिर सेटिंग्स में सबको बंद करना पड़ेगा। ओके, सो आप लोगों ने मुझे बताया तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की है, राइट? ओके, एनी अदर यूनिवर्सिटी विच यू नो जो फेमस रही है हमारे इंडिया की? तक्षशिला, तक्षशिला, ओके। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, परफेक्टली फाइन। और श्याम पटेल, स्विच ऑफ योर वीडियो मोड। सॉरी, किसी ने अभी कुछ आंसर किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, बनारस फेमस यूनिवर्सिटी नेम। यस, फेमस यूनिवर्सिटी नेम BHU। ओके, ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। सर, और MIT, okay, MIT University is again famous university of India at फेमस this moment. यूनिवर्सिटी इन इंडिया। Yes, famous university in India. और IIT Madras. Okay, IIT Madras. IIT Madras is IIT, not a university. ठीक है, perfectly fine. मद्रास की अन्नामला यूनिवर्सिटी है। Okay, AMU Rubin, thank you. Symbiosis is perfectly fine. Okay, Darshan, thank you so much for your response. Anyone else? यार आप लोगों को मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल यूनिवर्सिटी, ओके, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। ओह वाओ, DAVV, किसने आंसर दिया ये? RGP भी, राजीव गांधी। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं वो फेमस यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली होनी चाहिए, सो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, परफेक्टली फाइन। आई बिलीव अब मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि शायद मैं अब किसी को अलाउ नहीं करूंगा इस मीटिंग में एंटर होने के लिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12:10। सो let me begin with national education policy. Aman Shukla, please switch off your video mode. Okay, so national education policy, हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है कि बॉस इसमें ऐसा क्या किया गया है जो हमें बेनिफिशियल रहेगा, जो हमें फ्रूट देगा। फ्रूट इन द सेंस हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके, परफेक्टली फाइन। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया क्यों? सो बेसिकली हम लोग इंडियंस हैं, तो हमारे पास बोला जाता है कि अपार क्षमता है, वी हैव इनफाइनाइट कैपेसिटी टू डील विद एनी सिचुएशन जस्ट लाइक कोरोना वी आर डीलिंग विद, राइट और रॉन्ग? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। कोरोना से हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहे हैं। प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। Perfectly fine, perfectly fine. Okay, so education must develop not only cognitive capacities. अभी तक स्कूल लाइफ में हम लोग क्या करते थे? A for apple, B for ball, C for cat, रट्टा मारा, एग्जाम दिया और पास हो गए। हम we used to be very happy कि boss we are having this much of percentage. लेकिन education does not mean attaining percentage. What education means is to know and understand what are the thinking abilities which we may develop from our education system, which we may develop problem solving skills, which we may develop social, ethical and emotional capabilities. Let me put you in a situation. अगर आप प्रधानमंत्री भारत देश के होते, if you were the prime minister of India, कोविड-19 सिचुएशन को डील करने के लिए आप क्या करते? कोविड-19 सिचुएशन को डील करने के लिए आप क्या करते? प्लीज टाइप योर आंसर और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप भारत देश के प्रधानमंत्री होते तो कोविड-19 सिचुएशन को डील करने के लिए आप क्या करते? सर फॉरेन फ्लाइट्स को बैन करते। ओके, फॉरेन फ्लाइट्स को बैन करते। क्या ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था? यस सर, किया था, लेकिन बहुत लेट किया था। ओके, किया था, बहुत लेट किया था। आज हम उसके ग्रीवियंसेस पे बात नहीं करेंगे। और क्या करते आप लोग, और क्या मेजर अपनाते अगर आप इस भारत देश के प्रधानमंत्री होते? और क्या आप मेजर अपनाते?
come on, answer. If you were the Prime Minister of our India. सर लॉकडाउन थोड़ा लेट लगाते जिससे Okay, सब सेटल हो पाते। सब सेटल हो पाते, ऐसा कैसे होता? Can you explain? सर मतलब कुछ दिन पहले वार्निंग दे दी जाती कि लोग कल मतलब काम पूरा कर लीजिए जहाँ पे जो है। परफेक्टली फिर फाइन, जिसको जहां जाना है चले जाइए, हम लोग लॉकडाउन लगाने वाले। ओके, तो जो हमने सिचुएशन देखी थी कि बहुत सारे लोगों को पैदल इधर से उधर जाना पड़ा था, वो सिचुएशन अराइज नहीं होने देते। परफेक्टली फाइन। एजुकेशन में यही चीजें होती है। आज तक हम लोग एजुकेशन ले तो रहे हैं, बट एग्जैक्टली एजुकेशन हम क्यों ले रहे हैं हमको समझ में कभी नहीं आया। सो आज हमें ये समझने की जरूरत है कि एजुकेशन जो हम ले रहे हैं वो हमें कौन सी स्किल प्रोवाइड कर रहा है। क्या हमें क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड कर रहा है वो? क्या हमें सोशियली सोचने पे मजबूर कर रहा है वो? क्या हम लोग वाकई में एथिकल है? और अगर एथिकल हैं तो आप और हम जैसे बड़े लोग ही बड़े अफसर बनते हैं और रिश्वत लेते हैं, सो कॉल्ड हम लोग ब्लैक मनी के ऊपर बात करते हैं, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एथिक्स सिखा रहा है? क्या हम इमोशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर सोचते हैं? ये सारी चीजें को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एड्रेस किया है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था कि हमारे इंडिया से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले हैं, जिसमें से कुछ नाम आप अभी हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये जो बड़े बड़े नाम हमारे स्कॉलर्स निकले हैं वो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जिनको हमने तक्षशिला नालंदा नाम से जाना है। तक्षशिला नालंदा क्या करते थे? वो एक ही यूनिवर्सिटी में मल्टीपल मल्टी लिंग्विस्टिक कोर्सेज चलाते थे। मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट इंडिया की, जहां पे आर्यभट्ट आया था। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में भी एक गाना आ रहा है पूरब और पश्चिम फिल्म का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। एक्चुअली वो गाना जब बना था वो हमारी यूनिवर्सिटीज, वो हमारे एजुकेशन, वो हमारे सोशलिटी, एथिक्स और इमोशनल कैपेबिलिटीज को सोच के बनाया गया था। ऐसे महान महान लोग हमारे यहाँ से निकले और उन्होंने नीतियां दी, जिसमें से हम लोग चाणक्य नीति फॉलो करते हैं। और चाणक्य नीति के बारे में अगर मैं बात करूं तो चाणक्य नीति इंस्पायर हुई है हमारी भगवत गीता से। अगेन हमारा इंडिया का, शुभम जसवंत प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो मोड। हमारे ही इंडिया का अगेन एक और ऐसा कल्चर जिसका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन सब चीजों पर डील कर रहा है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल फोकस क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, you should recognize, you should identify and you should know each of your capability। जरूरी नहीं है कि एक बी फार्मा डी फार्मा करने वाला कैंडिडेट फार्मेसी फील्ड में एक्सेल करे, जरूरी नहीं है। If I talk about you know अनिल कुंबले is cricketer, but अगर मैं उसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखूं तो he was a mechanical engineer। So we need to understand this thing, we need to recognize, we need to identify, we need to focus on our unique capacities, capabilities which we all have। अगर मैं बात करूं कैपेसिटीज, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफिकेशन को, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। तो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने फ्लेक्सिबिलिटी पे भी फोकस किया है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन माय एडमिशन इन बी फार्मेसी, मैं फर्स्ट ईयर करके मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण मैं सेकेंड ईयर अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं, तो एक साल बाद आके मैं सेकेंड ईयर फार्मेसी वापस कंटिन्यू कर सकता हूं। एंड जो मैंने फर्स्ट ईयर दिया उसका मुझे एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज एड्रेस्ड। Emphasis on conceptual understanding, the most important aspect. Critical thinking and creativity, again the most important aspect. Create, उसके बाद ethics and human and constitutional values. Again हम बात करूंगा constitutional values। Maximum of you might be belonging to Indore. If you people belong to Indore, type yes or no in the chat box. If you belong to Indore, type yes or no in the chat box. Yes, perfectly fine। मुझे आंसर आता जा रहा है। तो अभी इंदौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज पे चल रही है? अभी इंदौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की चल रही है? इंदौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज पे चल रही है? कोई मेरी वॉइस को रिपीट कर रहा है? प्लीज 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 डू नॉट डू दिस। ट्रैफिक इज द मेजर इशू जो हॉटशॉट टॉपिक बना हुआ है इंदौर में। नाउ सर जॉब ओके, ये तो पैन इंडिया का प्रॉब्लम है बॉस, जॉब। लेकिन पैन इंडिया का ये प्रॉब्लम दूर करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंदौर का अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ट्रैफिक। ट्रैफिक को दूर कौन करेगा? क्या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स दूर करेंगे?
certainly उनकी ड्यूटी है, but what is your duty? Yes, social distancing is also a problem. Citizens, yes, the people who are residing in Indore will definitely have to do something. Public awareness होना चाहिए, perfectly fine. So वो something में क्या होगा, आपको ये समझना होगा कि बॉस ये प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। तो अभी इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने कुछ टाइम पहले ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था अंडर ट्रैफिक वीक। इफ यू नो दिस थिंग, if you know this thing, please type yes in the chat box. अभी yes, perfectly fine, एक कुछ yes मुझे आते जा रहे हैं। So उन लोगों ने क्या किया, अवेयरनेस फैलाया। अवेयरनेस कैसे आया, एजुकेशन से आया। एजुकेशन कैसे आया, गोइंग टू स्कूल्स ना। इस एजुकेशन का मीनिंग था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को कुछ बताया। बॉस आपको संविधान ने ये बोला है, जो रूल्स है वो ये बोलता है कि वियर हेलमेट if you are riding a two-wheeler, if you are riding a four-wheeler, please wear your seat belts. ये पूरा आपको कैंपेन में बताया गया था। Next, promoting multilingualism and the power of language. National education policy is giving this power to the states to, guide the students on their own state language. Say for example, अगर मैं हैदराबाद में पढ़ रहा हूं और मेरी स्टेट की लैंग्वेज तेलुगु है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बोला कि मैं आपको 3 चॉइस देता हूं। मतलब जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को 3 चॉइस दे रही है लैंग्वेज में, जिसमें से एक उनकी स्टेट लैंग्वेज हो सकती है। सो इफ आई एम रिसाइडिंग इन हैदराबाद, आई कैन चूज टू ऑप्ट Telugu as my language of learning. So this is one of the focus of promoting multilingualism and power of language. लाइफ स्किल्स के मैं बारे में बात करूं तो आज नेस्कॉम ने एक सर्वे किया था दिसंबर 2020 में, जिसको कंप्लीट किया। उस सर्वे के रिजल्ट में नेस्कॉम ने ये डिराइव किया था, द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइंग in the technical courses from India are not having the proper life skills. They do not know how to deal with the situations. They do not know how to react on a particular situation. They do not know how to deal with a particular crisis. So इस चीज को भी दूर करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ इंप्लीमेंटेशंस कराए हैं। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। Assessment criteria will be changed. Assessment criteria will be changed. अभी हम सब लोगों को दिक्कत थी, क्या होता था, हम जब स्कूल में थे तो बोलते थे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को गालियां देते थे। अगर आप उनमें से स्टूडेंट थे, वैसे स्टूडेंट थे जो अपने एजुकेशन सिस्टम को गालियां देते थे, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से थे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को गालियां देते थे कि नहीं यार ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, दिस एजुकेशन सिस्टम नीड टू चेंज। सो यार कंग्रेचुलेशंस टू यू पीपल, बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, बिकॉज आप लोगों की गाली देने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बोला जाता था, आप लोगों की बात सुनी, आप लोगों की बात सुन के अब उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं और वो चेंजेस फेवर करेंगे आप ही लोगों के लिए। ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बात करूंगा सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, वाकर अली सैयद आपने हैंड रेज किया है, इज देयर एनी कंफ्यूजन? Okay, I'm moving ahead. Synergy in curriculum across all levels of education. Okay, I'm coming back again to you people. How many of you are from MP board? जिन्होंने 10th और 12th MP board से किया है? Just raise. Yes, sir. Perfectly. मेरे पास आंसर्स आते जा रहे हैं. Yes, 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 yes. Great. And how many of you are from CBSE board? CBSE one. Please write yes in the chat box or write CBSE. Okay, CBSE भी लोग हैं. Now, what is the difference between the curriculum of CBSE and MP State Board Education? What is the difference between the curriculum of MP and CBSE curriculum? It's almost same, sir. It's almost same. But Yes, sir. why it is कि CBSE के students को ज़्यादा recognize किया जाता है? सर सीबीएसई डीप में पढ़ाता है। ओके, सीबीएसई डीप में पढ़ाता है, परफेक्टली फाइन। और एमपी बोर्ड एग्जाम में पास करने लायक पढ़ाता है। इज दिस सो? No, sir, not at all. नॉट एट ऑल। देन कैसा है? सर सीबीएसई सेंट्रल होता है और मतलब पूरे इंडिया के लिए होता है और एमपी बोर्ड सिर्फ एमपी के लिए होता है। एग्जैक्टली। सो द फोकस ऑफ एमपी बोर्ड इज टू
attain or give education to the students of MP, but CBSE govern होता है NCERT से. NCERT पूरा nationwide को govern करता है. So from now onwards, we will be having an education policy which will be, you know, synergical in all its curriculum. जो रह के पढ़ रहा हूँ वही मैं महाराष्ट्र में रह के पढ़ूंगा, वही मैं दिल्ली में रह के पढ़ूंगा, वही मैं हरियाणा में रह के पढ़ूंगा. प्लीज किसी का ऑडियो मोड ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए. ओके, प्लीज ऑफ कर दीजिए. आपने जितना अमाउंट बोला मैंने उतना अमाउंट अपनी किसी चीज में 48 में की वो ठीक है आपने. हेलो, हाँ, okay, perfectly fine. So again, I am coming back to my presentation. So these are the typical principle or highlights of National Education Policy 2020. Moving ahead, हायर एजुकेशन के ऊपर मैं डायरेक्टली बात करूंगा क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पे हम लोगों का फोकस अभी नहीं होना चाहिए. सो हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बोलता है कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस शुड बी क्वालिटी गिविंग. अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन होना चाहिए. हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है और उनका विजन होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जाए अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल एजुकेशन. सो मैं बात करूं साइंस की, मैं बात करूं आर्ट्स की, मैं बात करूं कॉमर्स की, मैं किसी भी एजुकेशन की बात करूं. So every education will focus on the cognitive aspect of teaching. Cognitive aspect of teaching का मतलब आप लोगों को practically किसी भी चीज को कैसे डील करना उस पे फोकस किया जाएगा. You people are pharmacrats of India. You people will be dealing with pharmacy. So you people should understand how to play with the chemicals. वो केमिकल्स को सिखाने का तरीका अब एजुकेशन सिस्टम बोलता है कि नया चीज अडॉप्ट करो. सो यू नो जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कि यार हायर एजुकेशन सिस्टम में एक कोई भी परफेक्टली इकोसिस्टम है नहीं. अगर मैं बात करूं आईआईटीज की तो बात करते हैं इनोवेशन की. अगर मैं बात करूं किसी नॉर्मल कॉलेज की वो बात करता है एग्जामिनेशन पास की. सो देयर शुड बी अ सिनर्जिकल इकोसिस्टम वेयर इन एवरी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन शुड टॉक ऑन इनोवेशन. अब आगे दिया जाता था कि यार कॉग्निटिव स्किल्स पे कोई भी एजुकेशन सेक्टर फोकस नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली स्टेट एंड सिटी लेवल उस पे फोकस किया जाएगा. अगर मैं बात करूं जितने भी डिसिप्लिन्स आए हैं उनको नैरो की जगह ब्रॉड किया जाएगा. अगर मैं बात करूं यार कुछ ऐसे सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होता है एजुकेशन का, उसको बढ़ावा दिया जाएगा. टीचर्स को और बढ़ाया जाएगा. और जितना हम लोग बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन से लीडर आना चाहिए वो अब उस पे फोकस किया जाएगा. सो यू नो दिस इज द न्यू फ्रेमवर्क गिवन बाय NEP 2020. आगे बढ़ता हूं मैं. अब इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन पे बात करें तो you people should have knowledge. You people should have a knowledge of how to do things. Am I right or wrong? Please type yes in the chat box. If I'm wrong, please type no in the chat box. दोनों हो नहीं सकता क्योंकि KBC चल नहीं रहा है. None of the above option है ही नहीं. You people should know to deal with the situations क्योंकि you people are so-called educated people of India. Type yes or no in the chat box. Perfectly fine, perfectly fine. तो यही चीज अब बोली जा रही है कि बॉस फोकस किस पे करो? लर्निंग पे. बॉस फोकस किस पे करो? अपना एक्सीलेंसी पे. बॉस फोकस किस पे करो? उस लर्निंग को अप्लाई करने पे. सो दिस इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल. आप लोगों को कोरोना के टाइम पे घर में बैठा के एजुकेट किया जा रहा था. हाउ वाज द फीलिंग? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू आंसर. आप लोगों को कोरोना टाइम पे लॉकडाउन के समय पे घर में बैठे बैठे एजुकेट किया जा रहा था. हाउ वाज द फीलिंग? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ टू आंसर. या कोई भी आंसर नहीं करना चाहता? I want to have an interactive session. Please, come on. Lockdown time Sir, period. it's 30% of the online. Sorry, 30% of the Offline classes, sir.
ओके, ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी सर। एडजस्टेड समहाउ। कितने लोग आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट फिजिबल फॉर मी? कितने Yes, लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट विजिबल फॉर मी? मैं घर पे बैठ कर नहीं पढ़ सकता बिकॉज आई एम इनटू माय अटमोस्ट कंफर्ट जोन। मैं अगर मेरी माँ को बोलूंगा कि क्लास के बीच में मेरे को फ्रेंच फ्राइज खानी है तो मेरी माँ मेरे को फ्रेंच फ्राइज ला के देगी, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। ओके सर मोस्टली प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मोस्टली प्रैक्टिकल्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोरोना में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि द नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस व्हिच द स्टूडेंट्स वर हैविंग वर ट्रेमेंडस। इतने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लिए गए स्टूडेंट्स के द्वारा जिसकी हद नहीं है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, स्टूडेंट्स के पास रेज्यूमे में डालने के लिए सर्टिफिकेशन है, लेकिन अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों के लिए है, क्या वो सर्टिफिकेशन फ्रूटफुल है? इफ यस, देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, नो, ओके, यस, नो, यस, नो। कैन एनीवन अनम्यूट itself to answer this question? वो fruitful है या नहीं है? तो क्यों, नहीं तो क्यों? सर नहीं है। क्यों नहीं है? सर मोस्टली हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो मतलब इंटरव्यूअर हमारी प्रैक्टिकल बेसिस नॉलेज को गेन करता है, मतलब वो देखता है कि हम कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं। परफेक्टली फाइन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर है या नहीं? इंटरव्यूअर एक मोस्टली इंटरव्यू वही देखता है कि हमारे पास सर एक वो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पे नहीं जाता, वो एवरी इंप्रेशन पे जाता है। हर सिचुएशन की इंप्रेशन उसको देखनी होती है, राइट? तो हम हर सिचुएशन पे कैसे बिहेव करते हैं। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। कोई और आंसर इसमें देना चाहेगा? ऑनलाइन एजुकेशन, अगर कोई फैकल्टी मेरा ये सेशन अटेंड कर रही हो तो आई वुड रिक्वेस्ट फैकल्टी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑनलाइन एजुकेशन, हाउ यू फेल्ट? डीलिंग वाज डिफिकल्ट, बट हाउ यू फेल्ट? कोई फैकल्टी अगर इसको आंसर करना चाहे तो, एनी फैकल्टी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जो आंसर नहीं कर रहे, राज जायसवाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Any faculty would like to answer? Raj Jaiswal, please unmute yourself. Okay, certification can't develop skills. Perfectly fine, Shweta ma'am. Thank you so much for this answer. Yes, certainly certification cannot develop skills. Skills has to be attained based on cognitive ability. Cognitive ability का मतलब जो मैं सीख रहा हूं उसको क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूं. If I'm right, type yes in the chat box. If I'm right, type yes in the chat box. Thank you so much. चलिए, moving ahead. ये सब अब मेन थ्रस्ट एरिया आया कि बॉस नॉलेज इज द मेन थ्रस्ट एरिया फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड कंसोलिडेशन में ये होने वाला है कि एवरी कॉलेज नाउ विल बी ऑल टुगेदर एन ऑटोनमस or a university which will be providing multidisciplinary courses. So this is the new reform in NEP 2020, wherein affiliated colleges जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेके अपना कॉलेज चला रहे हैं, उनको NRF के गाइडेंस के थ्रू अपने इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करते हुए एक ऑटोनॉमस या तो एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. The reason behind that is India should develop more and more knowledgeable people. This is the basic crux of this idea. Second, अगर मैं बात करूं तो individual should be innovative and should create them well all-rounded. अगर ये कर पाते हैं तो well and good, क्योंकि this will certainly transform our economic challenges of the country. क्योंकि हम लोग बात करते हैं अगर literacy rate की, तो स्टिल स्टार्टिंग जब मैं छोटा था तब से लेकर आज तक मैं यही सुन रहा हूं कि लिटरेसी रेट केरला का सबसे ज्यादा है. व्हाई नॉट एमपी? व्हाई नॉट महाराष्ट्र? व्हाई नॉट हरियाणा? व्हाई नॉट दिल्ली? व्हाई नॉट यूपी? व्हाई नॉट पंजाब? व्हाई ओनली केरला?
अगर मैं बात करूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की, तो मैं ये सुनता था ज्यादातर बिहार के लोग ही एएस लायक एग्जाम देते हैं. Why not from MP? Why not from Haryana? Why not from Punjab? ये चीज को दूर करने के लिए अब कंसेप्चुअल परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एजुकेशन को देना होगा. दिस इज नाउ द न्यू एड-ऑन upon in the National Education Policy 2020. Last but not the least, by 2040, all the education institutions who are giving higher education should be multidisciplinary. जैसे मैं श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की बात करूं, तो initially it started with giving B Pharma, then slowly and gradually it adopted M Pharma, then slowly and gradually it adopted D Pharma, and now it is also providing education in Pharm D. So this is the actual meaning of multidisciplinary in pharmacy sector itself. So this is the new requirement under NEP 2020. Please unmute yourself. किसी की बीच में आवाज आई है. Moving ahead. मैंने क्वेश्चन किया था ऑनलाइन एजुकेशन पे. So हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड कंसोलिडेशन में देयर इज वन पॉइंट वेयर एन इंस्टीट्यूशन विल हैव द ऑप्शन टू रन ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स. So congratulations for those people who want to have job as well as they want to understand or they want to have their education. So this is one of the quality under NEP 2020. If anyone from you want to answer this question, क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा? क्योंकि अभी हमने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात किया था. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आंसर्ड मी कि नो इट इज नॉट सक्सेसफुल, नो इट इज नॉट फ्रूटफुल. तो अब क्या लगता है आपको? सर सक्सेसफुल होगा. सक्सेसफुल होगा. ओके, क्यों? सर एक्चुअली मेजर पोर्शन को ये मतलब जो ऑनलाइन सेक्शन था वो नहीं पसंद आया, बट कुछ लोगों का कंफर्ट जोन भी बनाना तो उनके लिए तो ऑब्वियसली फ्रूटफुल रहेगा जब चॉइस रहेगी, कंपल्शन नहीं रहेगा. तो ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर. दैट मींस अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन लाइक इग्नू, सो इग्नू पहले से ही बहुत बड़े लेवल पे ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन दे रहा है. Now NEP wants every educational institution to have this kind of platform latest by 2040. So within next span of 19 years maybe this is going to happen. आप लोग किसी ना किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे और अगर आप लोगों को अपने प्रमोशन के लिए एक नया एजुकेशन चाहिए, so you can opt for this. This is the major benefit which the new policy of NEP 2020 will provide. नाउ हम लोग बात करते हैं इंडियंस की. सो इंडियंस के पास बोला जाता था नॉलेज ऑफ मेनी आर्ट्स. अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, सो यू पीपल विल एग्री टू द फैक्ट दैट हम लोग बिलोंग करते हैं एक ऐसे रीजन से जिसको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदा. एम आई राइट और रॉन्ग? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. यस, हम लोग ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, वैद्य जी हुआ करते थे. और वो वैद्य जी किसी भी चीज का उपचार करते थे, किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते थे और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होती थी. एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर. परफेक्टली फाइन. सो एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें भी आया है टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंडर में कि every healthcare course should give the knowledge of all the three fields like Ayurveda, allopathy and homeopathy. ये तीनों fields का knowledge किसी भी healthcare में पढ़ रहे students के पास होना चाहिए. This is the new reform in NEP 2020. Moving ahead. Now, as the world is becoming small and small day by day, अगर मैं यहां से अमेरिका जाना चाहूं तो इट विल merely take 36 to 48 hours. Type yes or no in the chat box.
if I want to go to America from Indore, it will Yes, sir. be 36 to 48 hours. अगर मैं एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड से दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड की डिस्टेंस को इतना जल्दी कवर कर रहा हूं, तो स्किल्स को भी उतना जल्दी कवर होना बहुत जरूरी है. दिस इज द प्राइम फोकस अगेन ऑफ NEP 2020 कि अब इंडियन स्टूडेंट को नॉलेज इंटरनेशनली होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, दैट इज ओके, बट अ स्टूडेंट शुड नो एंड अंडरस्टैंड what is being happening under international boundaries. So there is one, global citizenship education which is brought to us by National Education Policy 2020 under Ministry. This is one again the multidisciplinary education aspect which will solve the problem of understanding the global issues and to come up with the solution which may provide us and platform wherein we can utilize our skills and again can take our India ahead. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, so all educational institutions will be now focusing on the opportunities for internships with local industries, businesses, artists, craft person, etc. Reason. Can anyone tell me, apart from pharmacy, which field are you interested for? Any of you, the attendees? Any of the attendee can tell me, apart from pharmacy field, any other field? Okay, technology, Ruben. Sorry, sports. Software and technology. Sports, business. So that is one particular thing. Now national education policy ये बोलता है कि you should be holistically developed. So pharmacy में तो develop हो ही रहे हो, psychology, sports, great. So you can now avail internship opportunities based on your interest. अगर मेरे को बी फार्मा करते करते साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया और मेरे को साइकोलॉजी को भी सीखने का है, तो NEP 2020 के गाइडलाइंस के अंतर्गत आई कैन ऑप्ट फॉर एन इंटर्नशिप अंडर अ साइकोलॉजिस्ट. सो दिस इज बिजनेस. यस, सर्टेनली यस. अब हमारा इंडिया स्टार्टअप कल्चर की ओर बढ़ चुका है क्योंकि 2016 में एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. उसके अंडर में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए. सो यस, यू कैन डू दैट नाउ. आप अब वो भी कर सकते हो. So this is again one of the advantageous factor under NEP 2020 for us. अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेशंस की, सो क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि यार मेरे पास एक एग्जिट ऑप्शन होना चाहिए. आई हैव टेकन एडमिशन इन फार्मडी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण मेरे को अर्न करना पड़ रहा है. दैट मीन्स मैं एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो मैं हो सकता है एजुकेशन अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं, मतलब मैं गलत बोल रहा हूं. ओके, बी फार्मेसी वालों के लिए मैं ये क्वेश्चन डालता हूं. 4 साल का बी फार्मेसी का कोर्स है. सेकेंड ईयर के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई फैमिली रिलेटेड और आप अपना एजुकेशन अभी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो सकता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. ओके, परफेक्टली फाइन. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसका भी सोल्यूशन यही निकाला, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग अ ईयर इन एनी डिसिप्लिन और फील्ड, जिसको आपका वोकेशनल कोर्स माना जाएगा और आप बाद में आके उसको कंप्लीट कर सकते हो. सो नेक्स्ट पॉइंट, जो मॉडल्स IITs IIMs चला रहे हैं उनको मेरू मॉडल बोला गया है, which focus on multidisciplinary education and research universities. So ऐसी यूनिवर्सिटीज अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एम में है. So this is one goodness to us. Talking about more, हमारे पास स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस बनाना है इंस्टीट्यूशन को. आप लोगों के लिए नए नए वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च करना है. अगर मैं बात करूं कोरोना जैसे पैंडेमिक जो आया, तो कुछ ऐसे कोर्सेज भी सोचने होंगे जो बात करेगा कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इनका वैक्सीनेशन कैसे किया जाए. उसका एजुकेशन भी अब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन एक प्रेडिक्शन आया है कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2021 देयर विल बी वन मोर पैंडेमिक व्हिच इज वेटिंग फॉर अस. दिस इज जस्ट द प्रेडिक्शन, रियलिटी नहीं है. नाउ
टॉकिंग अबाउट हाउ टू कैटलाइज क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च, क्योंकि आप लोग टेक्निकल पीपल हो तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको वो फोर्ट है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि to have research, the institute will provide you the necessary guidance, and if your research work is to the utmost quality, the institution may help you out in the financial aspect. This is under National Education Policy 2020, and this is also the focus of National Innovation and Startup Policy of Ministry of Education. So, National Education Policy and NISP both are focusing on the research framework, wherein every university, every college, every autonomous body has to occur certain environment wherein student will develop an ecosystem or will be studying in an ecosystem wherein they will be talking about research. Three Idiots में एक डायलॉग आया था जिसमें आमिर खान बोलते हैं कि कॉलेज मशीन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, यहाँ पे नए आइडियाज के बारे में बात नहीं होती है. तो वो थ्री इडियट्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सीरियसली लेते हुए ये नया रिफॉर्म लेके आए. अगर आप इस नए रिफॉर्म से सेटिस्फाइड है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके, परफेक्टली फाइन. मेरे पास यस 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 आंसर आ रहे हैं. दैट मीन्स kudos to National Education Policy 2020 brought to us by Ministry of Education. Now, last but not the least, other key areas of focus. Professional education सबसे पहला आता है. जैसे कि मैं बात कर रहा था, हम लोग आयुर्वेदा सेक्टर के लोग हैं क्योंकि इंडिया फेमस उसी के लिए था. मैं बात करूं 1950s की, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तब भी हम लोग हाईली डिपेंडेंट थे वैद्य जी पे, क्योंकि तब डॉक्टर्स बनना शुरू हुए थे, फार्मासिस्ट तो थे ही नहीं. सो दैट इज द रीजन डायग्नोज करने के बाद आपका मेडिकेशन का भी प्रोसेस डॉक्टर्स के पास चला गया, बट अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मासिस्ट. अब उसी के अंतर्गत NEP wants every educational organization to provide professional education in terms of their field or in vocational education. अगर मैं बात करूं employability की आप लोगों के लिए, just type the type of skill which you think which is important for you for an employment. ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि important है, जो आपको सिखाई जानी चाहिए. Type in the chat box. Okay, speaking skills. Thank you. You can making someone persuade. Okay, making someone persuade. That is the most important skill क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं. Yes, good, good, good. Any other who want to answer? Management, communication skills, marketing. Yes. Pharmacy deals with distribution channel. Perfectly fine. और कोई skill जो आपको लगता है कि pharmacy में होनी चाहिए? You can unmute yourself to answer, or you can type your answer in the chat box. Confident development. Okay, confidence development करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. Perfectly fine. What else? Diagnosis. Oh, yes, diagnosis. Perfectly fine. Or come on, speak up or type the skill which you feel like. Okay, how many of you feel like you should know how to address the audience? कोई भी नहीं. Okay, how many of you agree with me in a statement कि you should be able to know and understand how to address a meeting? क्योंकि आगे जाके corporate world में ये सब तो काम करना ही है. Yes, marketing, organizing skills. Okay, how many of you agree with me कि you should be able to understand the business development skills? Perfectly fine. How many of you agree with me कि you should be able to understand how to capture the market? It is apart from marketing skills. Huh? Do not confuse this with marketing skills. How many of you agree with me that you should be able to understand the demand forecasting? Because you people will be dealing with the drugs and pharmacy. So you should be able to understand the demand forecasting of that particular drug which a company is manufacturing. Perfectly fine, yaar. National education policy is focusing on these aspects of the skill wherein a student should be professionally developed. Adult education and lifelong learning. Please, Ashish Chaudhary, do not do this thing. Hello.
Am I audible? Type yes, no in the chat box. Am I audible to all? Please type yes or no in the chat box. Yes sir, you are audible. Perfectly fine. So मैं बात कर रहा था adult education and lifelong learning के ऊपर. So एक मैंने बात किया ट्रैफिक की. So traffic is one lifelong learning which a candidate should have. So आप लोग देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे schools and colleges क्या करते हैं, जितने हायर रैंक ऑफिशियल्स होते हैं ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनवाइट करते हैं और उनसे एक अवेयरनेस सेशन कराते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपने देखा होगा इंदौर में पिछले 3 साल से ये चलन आया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इंदौर ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द मेन सिग्नल्स. देखा है? यस और नो? So this is one of the awareness lifelong learning program. इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. But the major focus is foundational literacy and numeracy. Now if I talk about कि यार ठीक है, just tell me 100 का 10% कितना होता है? Can anyone answer this question for me? 100 का 10% कितना होता है? Perfectly fine. लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया 1999 रुपए का 0.4% कितना होता है? 1999 का 3.45% कितना होता है? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, राइट? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, राइट? Yes or no? Yes sir. Perfectly fine. Yes आने लग गए. That means हमारे पास जो एंशियंट नॉलेज था मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग वैदिक मैथ्स बोलते थे, वो भी अब फाउंडेशनल न्यूमेरेसी में इंक्लूड हो गया है. Now the schools will be focusing on giving the learning on Vedic maths, क्योंकि वैदिक मैथ्स के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं हुआ करती थी. मैं बात करूं डिफरेंट डिजिटल लिटरेसी की. आजकल डिजिटल मार्केटिंग का चलन है. यस और नो? डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आज एनालिस्ट का भी चलन आ गया है कि यार एवरी फील्ड ऑफ द बिजनेस रिक्वायर्स बिजनेस एनालिस्ट. Every field of the business requires digital marketing person. If I talk about healthcare sector, public relation department hota hai in every hospital. Yes or no? Public relations department hota hai in every hospital. Yes or no? लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी फार्मा इंस्टीट्यूट में इन सब वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे बात नहीं किया जाता था. बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाउ वांट्स particular vocational subject on these aspects. So this is the other key focus in adult education and lifelong learning. Next, promotion of Indian language, arts and culture. चलिए आगे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा. How many of you know इंदौर किस चीज के लिए फेमस है? स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए. ओके, स्वच्छता में नंबर 1. परफेक्टली फाइन. और पोहा जलेबी, खाने पीने में, पोहा जलेबी. परफेक्टली फाइन यार, मेरे को भूख लगी है, अब तो मैं खाऊंगा. ओके, और चाय. ओके, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स. और एजुकेशन. ओके, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर इज द एजुकेशन हब. परफेक्टली फाइन. और सॉरी, बिजनेस हब. Okay, Indore is recognized as the startup hub of Madhya Pradesh. Perfectly fine. Business capital of Madhya Pradesh, financial capital of Madhya Pradesh, industrial capital of Madhya Pradesh. Perfectly fine. लेकिन तुषराज, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेरी? Okay, आगे बढ़ते हैं. But how many of you know Indore is literally famous for its leather toys? इंदौर का कल्चर लेदर टॉय बनाने में. हाउ मेनी ऑफ यू नो इंदौर इज हैविंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? दैट इज द प्रॉब्लम. यस, दैट इज द प्रॉब्लम. We belong to a city called Indore, or we are educating from a city called Indore, and we do not know the art and culture of Indore. That is the basic problem wherein national education policy focuses on promotion of Indian language, arts and culture. अगर मैं इंदौर की बात करूं तो नेमाड़ी बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है, मालवा प्लेटो में. टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन बहुत कीन एस्पेक्ट है, आई बिलीव आप लोगों को समझ में आता होगा. मैं नीचे वाले पॉइंट्स पे फोकस करता हूं. पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. Now what do you mean by pilot studies?
ऐसी स्टडीज तो बहुत जल्दी एजुकेशन कराती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको डिजिटलाइजेशन पे ले जाती है, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स जो टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल रिपोजिटरी एंड डिसिमिनेशन। ये बात कर रहा है कि यार अब आप लोग फार्मेसी वाले हो, एक कंपनी है उसको कंटेंट राइटर चाहिए, लेकिन फार्मेसी वाला कोई मिलता ही नहीं है क्योंकि पीपल डू नॉट नो हाउ टू राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स इज द एस्पेक्ट व्हिच इज लैकिंग। सो उस पे फोकस कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वर्चुअल लैब्स, एड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड, ब्लेंडेड मॉडल्स ऑफ लर्निंग, these all things are being focused by national education policy. Thank you. Any query? क्योंकि इसके बाद मैं एक 2 से 3 मिनट्स का राउंड ऑफ क्वेश्चन रखूंगा। Any query to any student? Any query? No. Okay. चलिए, आप लोग एजुकेशन सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जो भी आंसर करना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। फैकल्टीज प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम? Practical learning more than theoretical learning. Okay, thank you. Practical learning more than theoretical learning. Quality education, no reservations. Okay, perfectly fine. Or Darshan, we will talk to this on some other day. और कोई आंसर? इक्वालिटी। Equality. Or what does that mean? तो जैसे अगर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के 85% है और सीबीएसई के स्टूडेंट के 90% है, तो हाउ कैन वी मैच देयर मतलब एकेडमिक लेवल एटलीस्ट? ओके, सो क्या करना चाहिए इसमें? No सर card एक सेंट्रलाइज बोर्ड कर देना चाहिए, या तो स्टेट बोर्ड हटा दें, या एटलीस्ट जो एग्जाम का लेवल है और कंटेंट है वो सेम हो जाए। जैसे एमपी बोर्ड का जो सोशल था 10th में, वो प्योरली एमपी के हिस्ट्री वगैरह पे बेस्ड था और इंग्लिश पे बेस्ड था सोशल। और सीबीएसई में इंडिया का कोई रिलेशन ही नहीं था। वो जैसे ब्रुकलिन और जर्मनी की हिस्ट्री से रिलेटेड थे 10th में सोशल। तो हम किसी का सोशल इंटरेस्ट कैसे दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का मैच कैसे कर सकते हैं? ठीक है, I'll give you one example of this. You are a student, right? You have certain expectations from education ministry, right? There is one candidate of Karnataka who wrote a grievance letter to the Minister of Education, and in that letter he wrote that there is no practical education which is being imparted on technical education. If I talk about specifically for engineering, उसने ये literally अपने लेटर में लिखा। वो जिस कॉलेज का था उस कॉलेज में इंस्पेक्शन किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और बाकी कर्नाटका के कॉलेजेस में भी किया गया जो रिमोट लोकेशंस पे थे, क्योंकि दैट चाइल्ड वाज बिलोंगिंग फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो भी बॉडी थी जिसने उसको सर्टिफिकेशन दिया हुआ था उसको भी लिया और उसके पूरे नॉर्म्स चेंज कर डाले अंडर कर्नाटका स्टेट। So you people are having the power to fulfill your expectations from the Ministry of Education by writing just one letter. आपने कभी CBSE को लेटर लिखा? I was having one of my classmates when I was in 11th and 12th. His name is Nayan. Nayan ने mathematics में limits and derivatives करके एक chapter हुआ करता था, उसमें कुछ theorem था, उसको disobey कर दिया और NCERT को लेटर लिख दिया। टू अमेज, उसके लेटर को रिकॉग्नाइज किया गया, उसके मैथमेटिक्स लेवल को और अच्छा करने के लिए उसको स्कॉलरशिप दी गई। He graduated from IIT Bombay. This is the power you people are having. You just need to give them the suggestion. This is what the requirement is. So national education policy जो बना वो बहुत सारे सजेशंस पे बना है, ऐसा नहीं कि हमने बना लिया है, बहुत सारे सजेशंस आए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना उस पे सोचा गया, एंड फाइनली वी आर हैविंग NEP 2020. Okay, how many of you are satisfied with the degree which is being awarded? Any answer? Any answer? Sir, Okay, please. You are satisfied. Cost of educational institution should be maintained by government. No need to develop new institution. Oh, perfectly fine. That is true. No need to develop new institution. I आपने बोला था. So are you satisfied or not satisfied? satisfied, sir.
That is fine. Okay. I'll again give you one example from a student of Delhi. He wrote to the Ministry of Education that उसके कॉलेज में और बहुत सारे कॉलेजेस ऑफ दिल्ली में क्या होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छे से जज नहीं किया जाता. उसने ये बोला यूनिवर्सिटी वही घिसे पिटे क्वेश्चंस पूछती है जो पिछले सालों से पूछती हुई आ रही है. सो एक स्टूडेंट जो एंड टाइम पे एग्जाम पढ़ के एग्जाम देता है उसके भी उतने ही मार्क्स होते हैं जो स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज किया. आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 2017 और उस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेलियर रेट ज्यादा था. यस, फेलियर रेट ज्यादा था. दिस इज द रियलिटी. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू यू रिकमेंड समथिंग फॉर दिस NEP 2020? क्योंकि मैंने अभी तक आपको स्टूडेंट एस्पेक्ट बताया है. Okay. Any feedback for the session? Any feedbacks for the session? Any feedbacks for the session? Please type in the chat box, or you can, unmute yourself and say the feedback. Sir, it was very helpful. Thank you, sir. Very informative, sir. Okay. One last question, which is, coming to my mind. What do you expect from SAIP? Lots of. Please share your expectations. Skillful education. Okay. Lots of skillful programs and interactions participations. We can participate and interact with different teachers, different institutes, and different mostly mentors. Okay, mostly mentors. Concept learning. Okay, Yes, concept. sir. Okay, there was one notice, I believe, which was circulated on Friday or Saturday, which talks about a national level idea contest. Yes, sir. I'm participating. Great to hear this. You are participating. Great, great, great. Please connect your, class coordinators to scale up your idea so that, your idea may be selected. और कोई? Okay, sir. और कोई? Any other suggestion? क्योंकि we are here to help you out. Any other suggestion? Sir, may I connect to you after meeting? Yes, you can connect me. No issues. Thank you, sir. Any other suggestion? Okay, so there is one of the College of Indore which is organizing a national level idea contest. That college is Acropolis, regarding which a notice was circulated among your class groups. Please just see whether you have, notified yourself with that notice or not. Try to participate if you have an idea. Okay, trust me, these kind of competitions or the participation will really boost you up in your career. Okay, any other thing? Or shall I wind up this session? Chalo, perfectly fine. Thank you so much, guys, for patiently listening. I hope you got something from this session, and I believe you will put forward your suggestions if you want anything from the fraternity of SAIP. Thank you so much, and thank you so much all the faculty members who have attended. Thank you so much for helping me out in organizing this session. Thank you.